رات کے سناٹے میں جب کیلیفورنیا کے جنگلات اپنی پرانی کہانیاں سنانے میں مصروف تھے، ایک پراسرار ہوا نے پہاڑوں کو جھنجھوڑا۔ یہ کوئی عام رات نہیں تھی، یہ رات قدرت کا انتباہ تھی جو انسانوں کی لاپرواہی اور بدلتے موسموں کے انتقام کی شکل میں زمین پر اتر آئی تھی۔ کہیں دور زمین کے ایک کونے میں بارش کے بادلوں کو روکنے والے گرم جھونکوں نے ایک چھوٹے سے شعلے کو جنم دیا۔ وہ شعلہ جسے شاید ایک بے ضرر حادثہ سمجھا جا سکتا تھا، انسانوں کے بنائے ہوئے ایندھن سے طاقتور ہو گیا۔ گھاس اور خشک درختوں نے گویا اسے اپنی آغوش میں لیا اور وہ شعلہ ایک وحشی درندے میں بدل گیا۔ جنگل جو کبھی سکون کی علامت تھا، اب ایک دہکتے ہوئے جہنم میں تبدیل ہو چکا ہے۔ شہروں کے قریب انسان اپنی ہی تخلیق کردہ آسائشوں میں مگن تھے، لیکن قدرت کی چیخوں کو سننے والا کوئی نہیں تھا۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف کی جانے والی چھوٹی کوششیں ان شعلوں کے سامنے مذاق لگ رہی تھیں۔ یہ آگ صرف درختوں یا گھروں کو نہیں کھا رہی تھی، یہ انسان کے غرور اور اس کی فطرت سے لا تعلقی کو بھی جلا رہی تھی۔ کہیں دور ایک بزرگ اپنی کتاب مقدس کو سینے سے لگائے کہہ رہا تھا، یہ آخری دور ہے، یہ وہ وقت ہے جس کا ذکر تھا کہ زمین خود کو انسان سے آزاد کرے گی۔ اور نوجوان اس کی باتوں پہ ہنس رہے تھے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ محض پرانی کہانیوں کی بازگشت ہے۔ لیکن آسمان پر سیاہ دھواں ایک الگ کہانی سنا رہا تھا۔ وہ دھواں جو کبھی تہذیب کی بلند عمارتوں کو دیکھ کر حسد کرتا تھا، اب اس کے خاک میں ملنے پر مسکرا رہا تھا۔ یہ قدرت کا وہ کھیل تھا جس میں کوئی جیتنے والا نہیں تھا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، کیلیفورنیا کی آگ ایک انتباہ ہے، ایک افسانہ بننے والی حقیقت جو بتا رہی ہے کہ انسان نے فطرت سے جنگ شروع تو کی تھی، لیکن وہ یہ بھول چکا تھا کہ اس جنگ کا اختتام وہ خود لکھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ لاس اینجلس کے جنگلات میں بھڑکتی آگ نے شہر کے دل کو دہلا کے رکھ دیا، جہاں شعلوں نے نہ صرف گھر، عبادت گاہیں اور کاروباروں کو خاکستر کیا، بلکہ قیمتی انسانی جانیں بھی چھین لیں۔ اس المناک واقعے میں کم از کم 10 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے اور ہزاروں عمارتیں راکھ کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ فائر فائٹرز شعلوں کو قابو میں کرنے کے لیے اپنی جانیں داؤ پر لگا رہے ہیں، مگر قدرت کی بے قابو قوت ان کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ پولیس اس قیامت خیز واقعے کے پیچھے ممکنہ آتش زنی کی تفتیش کر رہی ہے اور اس سلسلے میں ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خالی کرائی گئی جائیدادوں کو لوٹنے کے الزام میں 20 افراد کو حراست میں لیا گیا، جس سے اس المناک واقعے کے انسانی پہلو مزید تلخ ہو چکے ہیں۔ تقریباً 1,80,000 رہائشیوں کو انخلاء کے احکامات جاری کیے گئے اور یہ انخلاء ریاست کی تاریخ کے سب سے بڑے انخلاء میں سے ایک بنتا ہے۔ لیکن موسمی حالات اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات شعلوں کو مزید بھڑکانے کا خطرہ ظاہر کر رہے ہیں، جس سے فائر فائٹرز کی کوششوں پر دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ آگ ایک تلخ یاد دہانی ہے کہ انسانی غفلت یا جان بوجھ کر کی گئی حرکتیں کس طریقے سے بے پناہ نقصان کا باعث بنتی ہیں اور موسمیاتی تبدیلی کے خطرات کس حد تک حقیقی ہوتے ہیں۔ ان شعلوں کے بیچ میں متاثرین کے لیے ہمدردی، بچاؤ ٹیموں کے لیے دعائیں اور متاثرہ کمیونٹی کے ساتھ یکجہتی کے جذبات بے حد اہمیت اختیار کر گئے۔ لاس اینجلس کاؤنٹی کی جنگلاتی آگ نے ایک بے مثال تباہی مچائی ہے، جس کے اثرات شہر کی تاریخ میں ناقابل فراموش رہیں گے۔ 1,80,000 رہائشیوں کے انخلاء کے احکامات جاری کیے گئے اور حکام کو اس وقت یہ خدشہ ہے کہ مزید 2 لاکھ افراد کو بھی اپنے گھر چھوڑنے پڑ سکتے ہیں۔ ویسٹ ہلز میں نئی آگ بھڑکنے کے بعد پولیس نے آتش زنی کے شعبے میں ایک شخص کو گرفتار کیا، جبکہ دیگر مقامات پر آگ لگنے کی وجوہات کی تفتیش جاری ہے۔ خالی کرے گئے علاقوں میں لوٹ مار کا سلسلہ اس وقت جاری ہے اور اس وقت تقریباً آگ نے پیسیفک پیلیڈس کے علاقے میں 5300 عمارتوں کو تباہ کیا ہے، جبکہ ایٹن میں مزید 5000 عمارتیں خاک کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ ان اعداد و شمار نے اسے لاس اینجلس کی تاریخ کی سب سے تباہ کن آگ بنا دیا ہے۔ آگ کی لپیٹ میں آنے والے لوگوں میں معروف شخصیات شامل ہیں، جن میں لیٹن میسٹر، ایڈم بروڈی اور پیرس ہلٹن جیسے نام شامل ہیں، جو اپنے گھروں سے محروم ہو چکے ہیں۔ لاس اینجلس کی خوفناک جنگلاتی آگ نے نہ صرف انسانی جانوں اور املاک کے لیے خطرہ بنایا، بلکہ انشورنس انڈسٹری کے لیے ایک بڑا مالی بحران ثابت کرنے کے در پہ ہے۔ انشورنس کمپنیز کو یہ خدشہ ہے کہ اس آگ سے ہونے والے بیمہ شدہ نقصانات
$8 बिलियन से तजावुज कर जाएंगे, जो इसे अमेरिकी तारीख की सबसे महंगी आतिश ज़दगी बना सकते हैं। यह नुकसान इसलिए भी ज्यादा हो सकता है क्योंकि लॉस एंजलिस अमेरिका के महंगे तरीन घरों का मरकज है। लेकिन यह आग 2018 में शिमाली कैलिफोर्निया के पैराडाइज कस्बे के करीब लगी कैंप फायर के रिकॉर्ड को शायद न तोड़ सके, जो $12.5 बिलियन के नुकसानात के साथ अब तक की महंगी तरीन आग साबित हुई थी। उस आग में 85 अफराद हलाक और 50,000 से ज्यादा बेघर हुए थे। 2018 में शिमाली कैलिफोर्निया के पैराडाइज कस्बे के करीब लगने वाली कैंप फायर अमेरिकी तारीख की तबाहकुन तरीन जंगलाती आग के तौर पर याद की जाती है। 8 नवंबर को सुबह के वक्त हिट काउंटी के एक जंगलाती इलाके में शुरू होने वाली यह आग एक छोटे से शोले से कहर बनी। शदीद खुश्क साली और ताकतवर हवाओं के बायस आग ने तेजी से पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। आग के शोलों ने चंद ही घंटों में पैराडाइज कस्बे को जला के राख कर दिया, जो एक पुरअमन और सरसब्ज रिहायशी इलाका था। उस कस्बे की 95% इमारतें तबाह हो गईं, जिनमें मकानात, स्कूल, अस्पताल और कारोबारी मराकज शामिल थे। 85 अफराद मारे गए, जिनमें से कई अपनी गाड़ियों में फंसे हुए आग की लपेट में आए। 50,000 से ज्यादा अफराद बेघर हुए और हजारों को अपनी जान बचाने के लिए इलाके से फरार होना पड़ा। कैंप फायर से तकरीबन 18,000 इमारतें तबाह हुई और 1,53,000 एकड़ से ज्यादा जमीन जल गई। इंश्योरेंस के मुताबिक माली नुकसान $12.5 बिलियन से तजावुज कर गया, जो तारीख की सबसे महंगी जंगलाती आग बनाता है इसे। माहिरीन ने कैंप फायर को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का नतीजा करार दिया और कैलिफोर्निया को शदीद खुश्क साली और गर्द मौसम की जद में रखा। तहकीकात की गई, जिससे यह बात सामने आई कि यह आग जो थी, यह पब्लिक यूटिलिटी कंपनी के खराब बरकी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से शुरू हुई और कंपनी को बाद में $30 बिलियन के जुर्माने का सामना करना पड़ा। कैंप फायर ने ना सिर्फ हजारों जिंदगियां और जायदादें खत्म की, बल्कि मौसमियाती बहरान और गैर महफूज इंफ्रास्ट्रक्चर की संगीनी को भी नुमाया किया। उस सानहे ने कैलिफोर्निया में जंगलाती आग से निपटने के लिए पॉलिसीज में तब्दीलियों की राह हमवार की, लेकिन उन तब्दीलियों के नताइज क्या निकले? अब मौसम के बदलते हुए हालात ने उम्मीद की किरण दिखाई, लेकिन इस वक्त जो बीबीसी की मौसमियाती माहिर हैं सारा कैथ, उन्होंने इस बारे में खबरदार किया कि आइंदा हफ्ते तक इलाके में बारिश की पेशगोई नहीं है। खुश्क हवाएं और बुलंद दर्जा हरारत आग के मजीद फैलाव का खतरा बढ़ा रहा है और शहर के कई हिस्से बिजली से महरूम हो चुके हैं, ट्रैफिक जैम हो चुकी है और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया समेत मुतअद्दिद तालीमी इदारे बंद हो चुके हैं। ऐसी इत्तलात भी मौजूद हैं कि कुछ फायर फाइटर्स के पास पानी खत्म हो चुका है और आग पर काबू पाने की कोशिशों में मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि दूसरी तरफ नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बहरान पर हुकाम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन लॉस एंजलिस काउंटी के फायर चीफ एंथनी मार्वेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फायर फाइटर्स पानी की कमी या कम दबाव का सामना नहीं कर रहे। यह आग न सिर्फ लॉस एंजलिस बल्कि पूरी कौम के लिए एक चैलेंजिंग लम्हा है। माली नुकसान के साथ इंसानी जिंदगियों और बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले तबाही ने इस बहरान की संगीनी को उजागर किया है और हालात के बेहतर होने की इस वक्त दुआएं की जा रही हैं। सबसे बड़ी आग जो थी वो येलेसर्ड्स में भड़की थी, जो रियासत की तारीख की सबसे तबाहकुन आग बनने के करीब है। यह आग अब तक 20,000 एकड़ जमीन को झुलसा चुकी है। एटन की आग लॉस एंजलिस के शुमाली हिस्से को मुतासिर कर रही है और अब तक 14,000 एकड़ से ज्यादा रकबे को अपनी लपेट में ले चुकी है। हर्स्ट की आग सैन फ्रेंडेंडो के शिमाल में लगी है और 670 एकड़ पर फैल चुकी है। लीडिया की आग एक्टन के पहाड़ी इलाके में बुध की सपहर शुरू हुई और 350 एकड़ पर काबिज हो चुकी है। कैनेथ की आग जुमेरात को लॉस एंजलिस और वेंटोरा काउंटीज की सरहद पर शुरू हुई और तेजी से फैलकर 1,000 एकड़ से ज्यादा इलाके को मुतासिर कर चुकी है। सनसेट, वुडली और ओलिवस की आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन दीगर आगें ताहाल बेकाबू हैं और शदीद मौसमी हालात इन शोलों को मजीद भड़काने का खतरा पैदा कर रहे हैं। इन आगों ने न सिर्फ इमलाक को नुकसान पहुंचाया है बल्कि जानी नुकसान का सिलसिला भी जारी है, जबकि मकामी रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए बड़े पैमाने पर इनखला जारी है। कैलिफोर्निया की जंगलाती आग में शिद्दत के बढ़ते हुए वाकयात ने माहौलियाती तब्दीलियों के असरात को नुमाया किया है। तेज हवाएं और बारिश की कमी ने आग को भड़कावा दिया, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीली के पस मंजर में मौजूदा हालात ज्यादा खतरनाक बन रहे हैं, जिससे मजीद मकामात पर आग लगने के इम्कानात हैं। अमरीकी हुकूमत के तहकीकाती इदारे ताहाल इन मौजूदा आगों को बराह रास्त मौसमियाती तब्दीली से नहीं जोड़ रहे, लेकिन नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने यह एतराफ़ किया है कि मौसमियाती अवामिल जैसे बढ़ती हुई गर्मी, तवील खुश्क साली और पानी की कमी
जंगलाती आग लगने के बायस बन रही है और कैलिफोर्निया को हालिया महीनों में इंतहाई गर्म मौसम गर्मा और बारिश की शदीद कमी का सामना है, जिसने आग की शिद्दत को मजीद बढ़ावा दिया। आमतौर पे जनूबी कैलिफोर्निया में आग का मौसम मई से अक्टूबर तक होता है, लेकिन रियासत के गवर्नर गेविन न्यूसोम का कहना है कि अब यह मौसम की कैद से आजाद होकर पूरे साल पर मुहित हो चुका है, इसलिए इसे आग का साल कहा जा रहा है। लॉस एंजलिस की तबाहकुन आग में जेम्स वुड जैसे मशहूर शख्सियात के घर भी खाकिस्तर हो गए। जेम्स वुड, जो 2 बार ऑस्कर के लिए नामजद हुए, 3 मरतबा एमी अवार्ड्स जीत चुके हैं, उन्होंने CNN को इंटरव्यू देते हुए अपनी जज्बाती कैफियत का इजहार किया। उनके अल्फाज थे कि एक दिन आप स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं और अगले ही दिन सब खत्म हो जाता है। उनकी बातों पर एंकर भी अफसरदा हो गई, लेकिन जेम्स वुड को सोशल मीडिया पर सारिफीन की जानिब से हमदर्दी न मिली। मुतअद्दिद सारिफीन ने उनकी माजी की हिमायत को याद दिलाया, खास तौर पे इजराइल की गजा में की जाने वाली कार्रवाइयों के हक में उनके बयानात थे, जिन्हें कई अफराद ने नस्लकुशी की हिमायत करार दिया। और इस तनाज़े ने उनके मौजूदा नुकसान पर भी एक बहस छेड़ दी है, जहां कुछ लोग उनके लिए हमदर्दी की बजाय उनकी माजी के बयानात की मजम्मत कर रहे हैं। लॉस एंजलिस की तबाहकुन आग ने शहर के शिमाली इलाकों को अपनी लपेट में लिया। तेज हवाएं आग के फैलने का बायस बन रही हैं और पैसिफिक पैलेसेड्स जैसे मशहूर इलाके में जहां हॉलीवुड की मारूफ शख्सियात के महंगे घर जो हैं वो शदीद मुतासिर हुए हैं। गुलकारा और अदाकारा पैरिस हिल्टन ने इंस्टाग्राम पर बताया कि उनका मालेबो में वाक़ घर मुकम्मल तौर पे जल चुका है। उसी तरह हेडी मॉर्निंग और स्पेंसर प्राट ने भी अपने घरों के जलने की तस्दीक की, जबकि एडम ब्रोडी और लेटन मेस्टर ने अपने घर की वीडियो शेयर की जो आग में लिपटा हुआ था। अदाकारा एना फेरिस का घर मुकम्मल तौर पे खाकिस्तर हो चुका है और 15 बार ऑस्कर के लिए नामजद होने वाली गीत निगार डियान वॉन ने अपनी 30 साल पुराने बीच हाउस के जलने की इतला दी, जबकि अदाकारा कीलैक ने भी अपने घर के मुकम्मल तौर पे तबाह होने की तस्दीक कर दी है। फिल्म टॉप गन मैवरिक के स्टार माइल्स टेलर ने और उनकी अहलिया कैले का $75 लाख मालियत का घर भी आग की नजर हो चुका है। मैंडी मॉर ने अपनी रिहाइश गाह से महफूज मकाम पर नकल मकानी की और इंस्टाग्राम पे अपने घर के जलने के बारे में बताया। मशहूर अदाकार बेन एफ्लेक का $20 लाख का घर भी इस आतिशज़दगी में मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। आग के बायस हॉलीवुड की सरगर्मियां भी शदीद मुतासिर हुई हैं। ऑस्कर नामजदगियों की तारीख को आगे बढ़ाकर 19 जनवरी कर दिया गया है, जबकि कई फिल्मों के प्रीमियर भी मनसूख कर दिए गए। अब देखना यह है कि मजीद कितने हजार एकड़ रकबा इस आग की जद में आता है। अब देखना यह है कि मौसमियाती तब्दीलियों के तनाजुर में बैनुल अक़वामी मंजरनामे में कौन से मुमालिक उठकर अपनी आवाजें बुलंद करते हैं या फिर कुदरत के इस खेल से सरफे नजर कर लिया जाता है। देखना बाकी है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।